السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ۔ تمام حضرات مائک آن کریں۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ تمام حضرات مائک آن کریں، دعا پڑھیں گے۔ سب میرے ساتھ دعا پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب، میرا سینہ کھول دے اور میرا کام میرے لیے آسان فرما دے، اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ جائے۔ ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ امین یا رب العالمین۔ حضرات، آج ہم جو نیا لیسن ہم شروع کریں، آج بہت امپورٹنٹ لیسن ہے۔ آج میں چیزیں پڑھانے والا ہوں، آپ اس کو غور سے سنیے۔ اور میں روزانہ کی پوری کلاس کی ریکارڈنگ میں وہ بھی پوسٹ کروں گا، پورے کلاس کی جتنی بھی دیر کی کلاس کی پوری ریکارڈنگ ہے، اور ہوم ورک بھی بھیجوں گا آپ کو، اور میری وائس میسج میں آپ کو کیا پڑھ کے آنا ہے اس کی پریکٹس بھی کراؤں گا۔ آپ میری وائس میسج کے ساتھ پریکٹس بھی سن سکتے، تو آپ میرے کو کمپلیٹلی فالو کریے، ہمارے گروپ کو فالو کریے، ہوم ورک کر کے آئیے، اور ہوم ورک میں جو پریکٹس کرا رہا ہوں اس کو گھر پہ اس کی بھی پریکٹس کریے، اور پابندی سے آئیے اور ٹائم پہ آئیے۔ تو کیا ہے، یہ جو کورس ہے ہمارا تجوید کا، یہ کورس یہ بہت اس کے جو لیسنس ہے اس کو ہم کو کمپلیٹ کرنا ہے، بہت پڑھنا ہے، ہم لوگوں کو بہت محنت کرنا ہے نا، سیکھنا ہے۔ تو اس کے لیے تھوڑی محنت کرنا ہے، اور پابندی سے آنا ہے، اور جو ہوم ورک دیا جا رہا ہے وہ بھی کرنا ہے، کیونکہ یہاں پر گھنٹے 2 گھنٹے میں پورا کام نہیں ہو سکتا ہے نا۔ تھوڑا کام آپ لوگ گھر پہ کر کے آنا، ہوم ورک کا کام پریکٹس گھر میں کر کے آنا، یہاں پڑھنے کے لیے بالکل تیار ہو کے آنا آپ لوگ، ہے نا، اچھے طریقے سے۔ تو سب لوگ انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ اور دوسری خاص بات یہ ہے کہ تھوڑے دن نہ کے غائب نہیں ہو جانا، پہلے ہی سوچ لینا میں یہ کام، یہ 4 مہینے کا کورس ہے، میں کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا ہوں، میں پورے 4 مہینے پیشنس ہے میرے پاس، صبر ہے نہیں ہے، میں محنت کروں گا نہیں کروں گا۔ تھوڑے دن آ کے ایک دن میں سو گیا تھا مول صاحب، ایک دن میں ایسا ہو گیا تھا، میں کہیں چلے گیا تھا، نہیں میں یاد نہیں کر رہا، میں نہیں ہوم ورک نہیں دیکھا، یہ عذر نہیں پیش کرنا۔ پہلے قرآن سیکھ رہے ہیں، وہ یہ جو کام ہے یہ بہت بچپن میں کرنے کا تھا، یہ چھوٹی عمر میں کرنے کا تھا، اب ہم لوگ نہیں کر سکے کسی وجہ سے، کیونکہ دنیاوی تعلیم تھی، اسکول کو جانا تھا، یہ تھا، بہت مجبوریاں تھے، ہر ایک کی بہت لمبی کہانی ہے، ہر آدمی کی کچھ نہ کچھ پریشانی ہے۔ تو وہ جو ہونا تھا ہو گیا، اب آپ جوائن ہو گئے، اب آپ آ گئے، کلاس جوائن کر لیے، آپ کا ارادہ کر لیے، اپنی نیت اچھی کر لیے، تو پکا کام کریے۔ آپ کیسا بھی دیکھیں، 4 مہینے دیکھتے دیکھتے نکل جاتے ہیں، اور آپ کو اچھا قرآن پڑھنے آ جاتا، یہ ہمیشہ کے لیے آپ کا ایک کام پکا ہو جاتا ہے نا۔ آپ کو زندگی میں ایک بار قرآن پڑھنا ہی پڑھنا ہے نا، کبھی نہ کبھی تو موقع مل گیا آپ کو، ایک پڑھانے والا بھی مل گیا، ایک اچھی کلاس مل گئی، میں آپ کو پورا کورس مٹیریل دے رہا ہوں، ایک ایک لیسن سمجھا کے پڑھا رہا ہوں، اور کتنے لیسن ہے پورا سسٹمیٹک میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہے نا۔ اور آپ کو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں،
3 महीने 4 महीने से पहले तक आप देख लो, बहुत कुछ 80% 90% आप बहुत बेहतरीन पढ़ने वाले बन जाएंगे। आप कोई भी कारी क़रात करा तो आप पूरा समझ में आएगा आपको, क्या पढ़ रहे हैं उन्होंने, क्या कर रहे हैं, कैसा पढ़ रहे हैं। आप इमाम नमाज पढ़ेगा तो आपको अच्छा समझ में आएगा, आपकी नमाज अच्छी हो जाएंगी, आपका नमाज में दिल लगेगा कुरान के हवाले से। कुरान सुनेंगे आप तो आपका नमाज में दिल रहेगा, आपको तजवीद समझ में आएंगे, मुसाहब जो क़िरात कर रहे हैं वो पूरी समझ में आएंगी, यानी जो आप पढ़ रहे हो आप पूरे रूल्स अप्लाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, बहुत मजा आएगा, आप लुत्फ उठाएंगे, कुरान का लुत्फ उठाएंगे। तो जो है मेरी आपसे गुजारिश है, हर आदमी यहाँ पे जो बैठा हुआ है अपने आप से अहद कर ले, वादा कर ले, एक प्रॉमिस कर ले, मैं हर दिन कुछ भी हो जाओ मैं ये क्लास अटेंड करूंगा 6 बजे से 7 बजे तक। बहुत लोग अंदर आने के लिए मेरे पास रोजाना 100-200 महिला है, मुझे साहब उसमें जगह नहीं है, 100 आदमी अंदर आ गए बस, उसके बाद और लोग नहीं आ सकते। अगर नहीं, जो लोग नहीं आना चाह रहे आप छोड़ दीजिए, मैं दूसरे लोगों को जगह दे देता हूँ। हमारे पास कमी है, बहुत लोग सीखना चाह रहे हैं, तो जो लोग नहीं आना चाह रहे तो आप थोड़े दिन के बाद आके छोड़ देंगे तो आपकी सीट खाली रह जाएगी, फिर दूसरे लोग अभी इंतजार कर करके चले जाएंगे। अभी जिसको रहना है, जो वाकई में सीरियस है, जो पढ़ने के लिए आया है, जो पूरा सीखूंगा मैं, पक्का पूरा कोर्स करूंगा बोल के आया है, मैं बोल वही आदमी ठहरे ये ग्रुप, वही अपनी क्लासेस अटेंड करे, 4 दिन आके गायब नहीं हो जाए, नहीं तो मैं आपकी सीट दूसरे को दे सकता हूँ। अगर आपका इरादा पक्का नहीं है तो अभी बहुत है पढ़ने वाले, है ना, और जो है कोई जबरदस्ती नहीं है किसी को, है ना। तो हम जितना इजी हुआ, जितना आपको समझा है, आपको कोई चीज समझ में नहीं आए मेरे से 10 बार पूछिए, आप मेरे को मैसेज भेजिए, आप मेरे को कॉल करिए, मैं आपको 1 नहीं 2 नहीं 10 बार समझाने के लिए तैयार हूँ। तो हम क्या करेंगे, आज का नया सबक शुरू करेंगे, है ना, और दिलचस्पी से पढ़िए, कोई चीज समझ में नहीं आई तो दोबारा पूछिए। और जो है क्योंकि हमारे पास अगर मैं किसी को आज नहीं पढ़ा तो इंशाल्लाह उसको दूसरे दिन चांस दूंगा, आप बेफिक्र रहिए। हमने बोलता मैं नहीं पढ़ा, बोलता हो भाई थोड़े से टाइम में हम कितना काम कर सकते, बोला हम कोशिश कर रहे हैं हर आदमी को पढ़ाने की, तो आप बेफिक्र रहिए, आप बस पढ़िए बस हमारे साथ और लगे रहिए आप। ये बोर्ड पे जो है फोन नंबर है मेरा, सब लोग आप ये फोन नंबर रखिए, किसी को कोई सवाल करना है, कोई पूछना है तो मेरे को मैसेज भेज सकते, मेरे को कॉल कर सकते, ये नंबर है। सब लोग पूरी क्लास वाले जो है ये स्क्रीन का क्लिप लेके रखिए आप, है ना, तो आपको कल के दिन ये काम आएगा। देखिए मैंने आपको बोला था कि एक है हर्फ, एक है अल्फाबेट्स। अल्फाबेट क्या है, अलीफ, बे, ते, से, ये उर्दू वाला बोल रहा हूँ मैं, या अरबी में क्या बोलते हैं इसको, अलीफ, बा, ता, सा, है ना। जितने हम बे बोल के एक आवाज आता है, देखिए आप बे बोलेंगे तो एक आवाज आएगा, ते बोलेंगे उर्दू में ऐसा होता है, से बोलेंगे ऐसा, अरबी में क्या होता है, बा, ता, सा, जीम, हा, हम क्या बोलते हैं, है, जहां जहां एक आवाज आ रहा है उन लोगों के पास अलीफ लगाते, हम बोलते ये, उसमें उन लोग बोलते या, हम बोलते रे, उन लोग बोलते रॉ, है ना, समझ गए ना आप, अरबी में जो है उसका नाम अलग है। तो ये है अल्फाबेट, और एक है हरकत, अभी हम पढ़े हरकत, कल से पढ़ रहे थे, जबर, जेर, पेश, है ना, खड़ा जबर, खड़ी जेर, उल्टा पेश, है ना, जजम, तजदीद, है ना, और उसके बाद है दो जबर, दो जेर, दो पेश, ये सब जो है हरफों के ऊपर लगते ये चीजा, इसके ये उसके बोलते साइन, साइन इशारे, है ना, जबर, जेर, पेश, ये आपको बताते हैं तो मैं आपको डाल के, ये ना, ये हम पढ़ लिए पहले वाला, ये दूसरा एक एक लेसन है ये, है ना, ये एक एक लेसन है ये जजम, मैं आज आपको जजम पढ़ाने वाला हूँ, है ना, फिर हम अब दो जबर, दो जेर, दो पे, ये सब एक एक दिन करके पढ़ेंगे हम, है ना, ये एक लेसन है, ऐसा एक लेसन है, एक लेसन है, एक सब लेसन है ये,
सेपरेट सेपरेट। पहले मैं ये बता दूंगा ये हरफों पे क्या क्या लगते, ये क्या काम आते, ये इसको कैसा, ये रहा तो कैसा पढ़ना, इसकी तफसील बताऊंगा मैं आपको। जैसा कि आज का हम जेर जबर पेश का ये लेसन है, हम ये लेसन पढ़ लिए, ये लेसन बाकी है, मैं पढ़ाऊंगा अभी अभी ये नेक्स्ट यही है। आज हम पढ़ रहे हैं जज़म, आज हम पढ़ रहे हैं जज़म। ये जज़म की अलामत है, ये लेसन शुरू कर रहा हूं मैं। ये है जज़म, इसको क्या बोलते हैं? जज़म। ये उसकी अलामत है, ये क्या बोलते हैं इसको? जज़म। सबको मालूम रहना है और मालूम होगा मेरे ख्याल से। अरबी वाले इसको बोलते हैं सुकून, तजवीद में इसको बोलते हैं सुकून। जज़म भी बोलते हैं वो लगा, दो नाम है इसके एक्चुअली, लेकिन तजवीद वाले इसको कैसा बोलते हैं? सुकून। कैसा लिखना सुकून? सुकून मतलब सुकून, सुकून। ये क्या है? सुकून है, सुकून है। और जो है जिस हर्फ पे सुकून होगा उसको बोलेंगे साकिन। जिस हर्फ पे सुकून होगा, ये सुकून जिस हर्फ पे होगा उसको बोलेंगे साकिन। जैसे ये जीम है, जीम पे सुकून है तो हम बोलेंगे ये जीम साकिन है। ये नून साकिन है ना, ये नून साकिन है। ये मीम साकिन है, ये मीम साकिन, क्योंकि इस पे सुकून लगा हुआ है, क्योंकि इस पे सुकून लगा हुआ है। जिस हर्फ पे सुकून होगा उसको बोलेंगे ये साकिन है। जिस हर्फ पे सुकून होगा उसको हम क्या बोलेंगे? साकिन है। अब उसी तरीके से अभी हम जैसा पढ़ के आए, जबर जेर पेश, इसको बोलते हैं हरकत। पढ़े ना हम लोग, हरकत। जिस हर्फ पे हरकत होगी उसको बोलेंगे मुतहर्रिक। इन्हें मुतहर्रिक है, यानी हरकत वाला। मुतहर्रिक बोले तो हरकत वाला, मुतहर्रिक, हरकत वाला। ये बा पे पेश है, बा मुतहर्रिक है, लेकिन खास नहीं बोल सकते कि इस पे जबर है, जेर है या पेश है। हरकत है, कोई भी एक हरकत है। जब भी उस पर कोई हरकत होती है हम बोलते हैं इन्हें यह हर्फ मुतहर्रिक है। मुतहर्रिक है का मतलब हरकत वाला है, उस पर जबर है या जेर है या पेश है ना, हरकत बोलते हैं उसको, मुतहर्रिक। और जिस हर्फ पे सुकून है उसको क्या बोलते हैं? साकिन। साकिन है ये जीम साकिन है, ये नून साकिन है, ये मीम साकिन है। ये तमाम चीजें मालूम है ना, कल के दिन मैं पढ़ा तो मैं बोलूंगा ये साकिन है बोले तो आप समझ जाना इस पे सुकून लगा हुआ है। अब आइए आगे की तरफ, इसको सुकून क्यों बोलते हैं, हाँ, और ये सुकून कैसे पढ़ा जाता, अब मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ये 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 साकिन है, ये बा क्या है? ये बा साकिन है, क्योंकि बा पे सुकून है, साकिन है। हाँ, अब ये बा कैसा पढ़ा जाता मालूम है? ये बा जो है कैसा पढ़ा जाता है? ये जज़म जो है अपने से पहले वाले हर्फ की हरकत से मिला के पढ़ा जाता है। ये पहले इससे पहले वाले हर्फ पे क्या हरकत है? जबर है। ये जबर से मिला के पढ़ा जाता है, एकदम आवाज रुक जाता, एकदम आवाज खड़े हो जाता, एकदम आवाज सुकूनत इख्तियार कर लेता। सुकून, सुकून बोले तो ठहर जाना। आप बोलते ना, अरे क्या सुकून से बैठे उस्ताद, अरे क्या भाई बड़े सुकून से बैठे हुए, बोल तो कोई भी आदमी जो है कुछ खामोश बैठा हुआ है, कुछ सोच रहा है, कुछ फिक्र में है। आप जाते, आप जाएगा मस्जिद में, कोई आपका दोस्त बैठा हुआ, यार वो बड़े सुकून से बैठे, बोलते क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या है, खामोश बैठे हुए, हल रहे नहीं, जुल रहे नहीं, कोई फिक्र में है, कोई चीज कोई ख्यालों में है, क्या बात है, उसको बोलते सुकून। ठहरे हुए हैं आप, बिल्कुल स्टॉप है आप, स्टैंड स्टिल है आप, है ना, स्टैंड स्टिल है। तो ये जिस हर्फ पे सुकून होगा वहां आवाज ठहर जाती है, आगे वहां आवाज ठहर जाती है। अब खत्म। इन्हें जाके क्या करता मालूम है? ये जज़म जाके क्या करता, ये इससे पहले वाले हर्फ की हरकत को पकड़ता। किसको पकड़ता? पहले वाले हर्फ की हरकत को पकड़ता। पहले वाले हर्फ पे कौन सी हरकत है? जबर है, जबर को पकड़ लेता जाके। ये जज़म क्या है, ये सुकून क्या है? ये मैग्नेट है, मैग्नेट। इसको हरकत चाहिए, इन्हें पीछे जाता, पीछे जाके उसकी हरकत को पकड़ लेता, पकड़ के पड़ जाता। अब अगर यहाँ पे जबर नहीं है, अगर यहाँ पे जबर नहीं है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जेर है, यहाँ पे जेर है, ये जज़म जाके जेर को पकड़ता। इब, इब, आवाज रुक जाती, आवाज ठहर जाती, आवाज सुकूनत इख्तियार कर लेती, रुक जाती। इब, अब जबर भी नहीं है, जेर भी नहीं है, ये दो भी नहीं है ना। यहाँ पेश है, यहाँ पे पेश है, यहाँ पेश है, तो इन्हें क्या करता है? जज़म जाके पेश होगा, हरकत हो रहा कौन सी भी रहने दो। उब, उब, हरकत से पिछले वाले हर्फ की हरकत से मिला के पढ़ते,
आवाज रुक जाती, एकदम ठहर जाती. सुकून उसी को बोलते सुकून. आवाज सुकूनत अख्तियार कर लेती, रुक जाती, खड़े हो जाती, स्टैंड बाई हो जाती, स्टॉप हो जाती, डेड स्टॉप हो जाती. डेड स्टॉप मालूम है ना, डेड स्टॉप, एकदम खड़े हो जाना. अगर समझो, आपको एक स्टेप फर्दर बता रहा हूं, अगर समझो ये अलिफ पे कुछ भी नहीं है, खाली है अलिफ, नहीं, उन्हें जाके ढूंढती, अलिफ खाली है तो उससे पहले वाले को जाती, उससे पहले वाले को देखती तो उन्हें भी खाली है तो उसको भी छोड़ देती, उससे पहले वाले में जाती, अगर उन्हें भी खाली है तो उसको छोड़ देती, और उससे पहले जाती, और उससे पहले जाके अगर उससे पहले वाले पे जबर रहा तो इन्हें यहाँ ढूंढती जाके नहीं मिला, यहाँ ढूंढती जाके नहीं मिला, यहाँ ढूंढती नहीं मिला, यहाँ पे उसको मिल गया जबर. अब कैसा पढ़ेंगे इसको? ये पूरे साइलेंट है, ये पूरे बेकार है, निकाल देते बाहर. रब डेड वर्ड है, वो डेड वर्ड है, खाली है, उस पर कुछ भी नहीं रहा तो छोड़ देना, कुछ भी नहीं रहा तो छोड़ देना, नहीं पढ़ना उसको. वो लिखे हुए रहते कुरान में, 3-3 4-4 पे बताऊंगा, 5-5 हर्फ रहते जो नहीं पढ़े जाते. जजम क्या करना, जजम को हरकत ढूंढ रहा, जजम यहाँ ढूंढा कुछ नहीं था, यहाँ ढूंढा कुछ नहीं था, यहाँ वहां पे जाके उसको मिला, एक लाइन पहले जाके मिला तो एक लाइन पहले से आता उन्हें, है ना, उसूल है उसका. जहां पे भी जजम है उन्हें मैग्नेट है, उसको 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 हरकत चाहिए, आयरन चाहिए. मैग्नेट को क्या चाहिए? आयरन चाहिए. आयरन क्या है? जबर जेर पेश है, हरकत है. वहां जाके पकड़ता हूं, पकड़ के रब, रब ये पूरे गिरा देता है, डिसरिगार्ड कर देता है, इसको बाहर कर देता है. क्यों? ये साइलेंट है, ये नहीं पढ़े जाने वाले हैं, और आवाज रुक जाती है एकदम. ये जब भी आप सुकून पढ़ेंगे उसके बाद आवाज यहाँ के डेड स्टॉप हो जाती, स्टॉप, स्टॉप, खत्म. क्यों? सुकून, उसका नाम ही सुकून है, वो हर चीज साकिन है. साकिन माना रुक जाना, खड़े रह जाना. सुकून, सुकून, सुकून बोलते ना, बिल्कुल आदमी हलना जुलना कुछ नहीं, सुकून से बैठना, रुक जाती. अब आपको क्या मालूम हुआ? आपको मालूम हुआ कि जज़म को सुकून भी बोलते हैं. जज़म की अलामत कैसी रहती है देख लीजिए. जिस हर पे सुकून लगा हुआ रहेगा उसको बोलते साकिन. ये बा साकिन है, ये ता साकिन है, जीम साकिन है, मीम साकिन है, नून साकिन है. जिस पे भी सुकून रहेगा उसको क्या बोलेंगे? साकिन. सब पूरी क्लास वालों को मालूम रहना है, क्योंकि आगे मैं खाली ये इस्तेलाहात से पढ़ाऊंगा आपको. बा मुतहर्रिक है बोले तो आप समझ जाना है हरकत वाला, बा साकिन है बोले तो समझ जाना है जज़म वाला है. समझ रहे ना? आप हर आदमी प्रिपेयर होना, एक एक दिन एक एक चीज सीखना, हाँ, तरक्की करना, आगे बढ़ना. और जज़म कैसा पढ़, ये सुकून कैसा पढ़ा जाता? अपने से पहले वाले हर्फ की हरकत से मिला के पढ़ा जाता. हरकत नहीं है तो ना और पीछे जाता, वहां नहीं है तो और पीछे जाता. हरकत चाहिए उसको, सुकून को हरकत चाहिए पढ़ने के लिए. और पढ़ने के बाद आवाज रुक जाती, ठहर जाती, स्टॉप हो जाती, डेड स्टॉप हो जाती. आपको ये मालूम हो गया. अब मैं आपको कभी भी बोला या साकिन बोल तो समझ जाना ये जज़म वाली या को बोल रहा है, सुकून वाली या को बोल रहे या साकिन. ये वाव साकिन होना कंपलसरी है बोला तो क्या समझेंगे आप? ये वाव साकिन बोले तो वाव पे सुकून रहना, वाव साकिन कंपलसरी, वाव साकिन में वाव पे जज़म रहना, वाव साकिन. साकिन माने सुकून रहना उस पे, उसको बोलते साकिन. सब कुछ समझ में आ गया, अच्छी तरीके से समझ में आ गया. आज फ्यूचर में भी बताते रहूंगा. ये अब मैं आपको जज़म बता दिया, जज़म बता दिया. अब यहाँ पे आइए, हाँ, हम ये पढ़ लिए थे, हम जो है इसको निकाल देता हूँ. हम ये पढ़ लिए थे, जबर जेर पेश पढ़ लिए. जबर का आवाज किधर जाता? ऊपर जाता. जेर का आवाज किधर जाता? नीचे जाता. पेश का आवाज किधर जाता? फॉरवर्ड जाता. उसकी मकदार कितनी है? एक हरकत. उसकी मकदार कितनी है? एक हरकत. एक हरकत कैसा नापना? आप चारों उंगलियां खोल के बंद करना, हाथ के उंगलियां बंद करके खोल देना, ऐसा बंद करना खोल देना, है ना. चारों उंगलियां तेजी से ऐसा, आप हाथ खड़ा करके चारों उंगलियां ऐसा बंद कर देना मुट्ठी, फिर फट बोल के खोल देना. जितनी देर आप उंगलियां बंद करने में जो टाइम लगा उससे लंबा नहीं रहना आपका जबर जेर पेश. बहुत छोटा रहना, जितना छोटे रहा उतना सही है. जल्दी पढ़ना, उसको खींचना नहीं, है ना. ये हम पढ़ लिए. उसके बाद हम क्या पढ़े?
उसके बाद हम पढ़े अब जज़म, एकदम ये सबक में आ गए हम। आपको व्हाइट बोर्ड दिख रहा, मैं जो जो लिख रहा हूँ आपको सब नजर आ रहा है? कोई एक आदमी जो है, यस सर। हाँ हाँ, बस कोई एक आदमी खोलना, 4 आदमी, और आवाज नहीं आती मेरे को फोन करना, मैं आपको फोन नंबर दे दिया हूँ। जैसे ही आवाज कट गई, कभी कभी क्या होता, मैं लेक्चर देते वक्त में लाइन कट जाती, लाइन मैं बात करते रहता हूँ, मेरे को मालूम नहीं होता क्योंकि व्हाइट बोर्ड है, मेरे को नजर नहीं आता, मैं बात करते रहता हूँ करते रहता हूँ, मेरे को माल दिखता ही नहीं कि मेरी लाइन कट गई, मेरा आवाज नहीं जा रहा। आप लोगों ने जैसे ही देखना मेरी आवाज नहीं आ रही, कोई भी एक आदमी फौरन मेरे को फोन करना, फोन करके बोलता साहब आवाज नहीं आ रही, तो फिर मैं उसको जरूरत फिर रीडायल करके मिला देता हूँ, फिर लाइन मिला के फिर क्लास जारी करता हूँ। तो कभी भी कट गया आवाज तो मेरे को इत्तला करना, माशाल्लाह। तो अब हम क्या करें, पहला लेसन पढ़े मुतारिक के बारे में बताइए ना और एक बार। क्या बोले आप? ये मुतारिक के बारे में समझाइए, नहीं समझ में नहीं आया। जिस हरकत पे सुकून होगा मुतारिक कहेंगे। जिस हर पे सुकून होगा मुतहरिक नहीं, लाहौल वाला कुव्वत, जिस हर पे सुकून होगा उसको साकिन बोलेंगे, जिस हर पे जबर जेर पेश है उसको मुतहरिक बोलेंगे। ये 3 हरकत है ना, ये 3 हरकत है। जिस पे हरकत होगी उसको मुतहरिक बोलेंगे, जिस पे सुकून है उसको साकिन बोलेंगे। तो अब समझ में आ गया? जी जी जी। हाँ, अगर जबर जेर पेश है तो मुतहरिक, क्योंकि जबर एक हरकत है, जेर एक हरकत है, पेश एक हरकत है। हरकत होगी तो उसको बोलेंगे मुतहरिक है ना, बोलेंगे मुतहरिक। ये ता क्या है? ये ता मुतहरिक है, इस पर जबर है ना। ये सीन क्या है? ये सीन पे पेश है, ये सीन मुतहरिक है ना। ये शीन है, ये शीन जो है, ये शीन पे जेर है, ये शीन मुतहरिक है। 3 हरकत है, जबर जेर पेश। हरकत रहेंगी तो उसको क्या बोलेंगे? मुतहरिक, हरकत वाला। मुतहरिक बोले तो क्या माने होते? हरकत वाला, उर्दू में हरकत वाला। ये अरबी में मीम लगाए तो वाला को बोलते, वाला, हरकत वाला, हरकत वाला, मुतहरिक। जबर जेर पेश है तो क्या बोलते हैं? ये बा मुतहरिक है, ये ता मुतहरिक है, ये सीन मुतहरिक है, ये शीन मुतहरिक है। लेकिन अगर जज़म होगा तो बोलेंगे ये जीम साकिन है, ये नून साकिन है। क्यों? ये सुकून है, इसको सुकून बोलते हैं। ये नून साकिन है, ये मीम साकिन है, ये वाउ साकिन है, ये या साकिन है। क्यों? इस पे सुकून है। पूरी क्लास को समझ में आ गया? किसी को भी समझ में नहीं आया तो माइक खोल के मेरे से बात करना, पूछना, मैं और एक बार बता देता हूँ। सर समझ आ गया। फिर भी नहीं समझ में आया, मैं फिर और एक बार बता, माशाल्लाह, वेरी गुड, समझ में आ गया। अब यहाँ तक आप लोगों को अच्छा समझ में आ गया। आज हम क्या करें, आज हमारा दूसरा सबक क्या पढ़ाया मैं आपको? पहला सबक पढ़े थे जबर जेर पेश हरकत पढ़े थे हम, और जिस पे हरकत होगी उसको मुतहरिक बोलते। आज हम पढ़े ये सबक जज़म वाला। जज़म को सुकून बोलते, जिस हर्फ पे सुकून होगा उसको बोलेंगे साकिन, जिस पे सुकून होगा वो हर्फ को क्या बोलेंगे? ये साकिन है। साकिन है का मतलब उस पर सुकून है। ये तमाम हर्फ जो नजर आ रहे हैं आपको, जीम नून मीम वाव या, ये सब साकिन है, ये सब साकिन है क्योंकि इस पर सुकून है। चलिए यहां तक आ गए हम, अब आगे चलिए। एक एक जगह आप मेरे को रोक लेना, हर आदमी को हक है समझ में नहीं आया तो पूछने का। मैं और मेरा काम क्या है, मैं बताने के लिए बैठा हूं आप लोगों को। मैं फट आगे चले जाऊंगा, आप लोग नहीं समझ रहे तो फायदा क्या है पढ़ाने का। हर आदमी को साथ लेके चलेंगे, हर आदमी हमारे साथ, सब एक साथ रहना, पूरा ग्रुप एक जगह रहना, हर आदमी को समझ में आना हर चीज। मुझे थोड़ा आवाज जो है क्लियर सुनाई नहीं दे रही सब। पूरी क्लास वालों को अच्छी आवाज आ रही? जी हाँ आ रही। सर जी तो आपके फोन में प्रॉब्लम है, आपके फोन में आवाज प्रॉब्लम बिल्कुल है। साफ आ रही है। आप अपना आवाज साउंड और थोड़ा बढ़ा लीजिए, और दरवाजा बंद करके घर वालों को बाहर बढ़ा निकाल हुआ है दीजिए, साउंड घर में गड़बड़ नहीं होना तो अच्छा सुने आता खुद ब खुद। चलिए जी 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 जी। अब मैं यहाँ से पढ़ा रहा हूँ, यहाँ से मैं नया सबक पढ़ा रहा हूँ। नए सबक का नाम कल मैं आपको इंट्रोडक्शन करा दिया था, वो उसका नाम है मद्दे असली। सबक का नाम क्या है? मद्दे असली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मोहतरम, मैं पहली बार ही आज ज्वाइन कर पाया। ये आपने तो ज़बर भी समझाया, और ये क्या नाम है इसका, जज़म भी, लेकिन ये पेश का आपने सबक दिया है क्या? हाँ, जबर जेर पेश का मैं सबक दिया था, और पहले दिन मैंने पूरी क्लास की रिकॉर्डिंग डाल दी है। आप घर में बैठ के वो रिकॉर्डिंग सुनी तो समझ में आया था। पहले दिन की रिकॉर्डिंग, आप ग्रुप में है ना शुरू से?
जी जी ग्रुप में देखिए पहले दिन की रिकॉर्डिंग क्या है, दूसरे दिन की क्या है, तीसरे दिन की क्या है, हर दिन की रिकॉर्डिंग है, सुनिए जाके आपको समझ में आ जाएगा। ये जो बात कर रहे हैं घर वाले बात कर रहे हैं, लेडीज, आवाज नहीं आना लेडीज का यहाँ पे, जिसके घर में लेडीज बात कर रही है उन्हें अपना माइक बंद रखना, ताकि उनके घर वालों की आवाज पूरी क्लास वालों को सुनने नहीं आया। ऐसा माइक बंद कर दिया तो आपकी आवाज नहीं आती हमारे को, आप जो चाहे बातें करते रहो बैठ के, ठीक है ना। हमारे मुल साहब आपको आप समझ में आ गया, आप क्लास में जाके रिकॉर्डिंग सुन लेते, जो साहब आज ही आए बोल रहे थे जाके रिकॉर्डिंग सुन लीजिए। अच्छा ओके, मद्दे असली, आज के सबक का नाम क्या है? मद्दे असली। मद बोलते खींचने को, लंबा करने को। मत करो मियाँ, मत करके पढ़ो बोलता ना बच्चे, उस्ताद उस्ताद बोलते रहते बच्चों को। मत करो माने खींचो, लंबा स्ट्रेच करो, इतना 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 लंबा करो, खींचो, खींचने को बोलते, मत करना, खींचने लंबा करने को, है ना, लंबा करने को, है ना। आवाज को दराज करके पढ़ना, उसको बोलते हैं लंबा करना, मद करना। आवाज को दराज करना, दराज माने लंबा करने को बोलते हैं दराज। आप सुने होंगे गेसु दराज, ख्वाजा बंदे नवाज गेसु दराज, कई को बोलते गेसु दराज। उनके बाला लंबे थे, उनके गेसु जो है लंबे लंबे थे, खांदों तक थे लंबे लंबे बाला, दराज थे, लंबे बाला थे, इसलिए उनका नाम है गेसु दराज। गेसु बोलते बालों को, दराज बोले तो लंबे बाला थे उनके, गेसु दराज। वो अक्सर आपके दादा दादी नाना नानी पुराने बुजुर्ग हजरात आपको दुआ देते, तुम्हारी उम्र दराज हो मियाँ, तुम्हारी उम्र दराज हो, क्या मतलब? लंबी हो, तुम्हारी उम्र लंबी हो, तुम्हारे को बहुत लंबी उम्र लगे, है ना, दराज बोलते हैं, है ना। तो मद माने खींचना, दराज करना, आवाज को दराज करके पढ़ना, खींच के पढ़ना, मद। मद असली माने ओरिजिनल, असली माने ओरिजिनल। हम बोलते हैं ना दूध असली है क्या, घी असली है क्या, शहद असली है क्या? असली माने बिल्कुल पक्का ओरिजिनल, असली, असली, है ना, असली, है ना। हमको दूध में पानी मिला हुआ रहा तो असली नहीं रहता, हाँ, शहद में मिलावट रही तो असली नहीं रहता, है ना। उसी तरीके से जो चीज में मिलावट रहती है असली नहीं रहता। असली, यहाँ पे इन्हें क्या बोल रहा है? मद्दे असली, मद्दे असली। मद्दे असली क्या है भाई? मद्दे असली, हाँ, असली, ओरिजिनल ये। और इसका दूसरा नाम है मद्दे तबई, मद्दे तबई। इसको दो नाम है इसके, तबई, ई ऐन के नीचे जेर है, तबई। तबई बोलते हैं नेचुरल, नेचुरल, कोई भी चीज नेचुरल रही, नेचुरल मद, नेचुरल मद। और वाकई में नेचुरल मद है, मैं जब पढ़ाऊंगा आपको तो आपको अच्छा समझ में आएगा इंशाल्लाह। आपको मैं बताऊंगा ये बिल्कुल नेचुरल मद है। आप जब जब इसको पढ़ेंगे तो आपको अच्छा समझ आएगा। तो इसका क्या है, ये लेसन के दो नाम है, मद्दे असली, मद्दे तबई। अंसार मैं एक बात बाद में कॉल करूं? एक मिनट, ये बंद होगा, मैं इसको फिर दोबारा ऑन कर रहा हूँ। टेलीफोन आया तो पूरा डिस्टर्ब हो जाता था, मालूम आप, टेलीफोन वाले जो है। उफ, आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आई, आप जो है पूछना मेरे को। जी, मद्दे असली। तो इसके इसके आज के सबक का नाम क्या है? मद्दे असली या मद्दे तबई, दोनों भी है। मद्दे असली यानी खींचना, लंबा करना, मत करना, मद्दे असली। कैसा मद होता है, ये क्या है, क्या इसका तरीक़ेकार है, मैं आपको बता रहा हूँ। हुरूफ मद्दा तीन है, हुरूफ मद्दा तीन है। कौन से? अलीफ या वाव। ये तीन हर्फ ऐसे है जिसमें मद बनता। जैसे वावेल है इंग्लिश में, AIOU, हर कलमे में वो मौजूद रहते हैं, है ना। आपका इंग्लिश में मालूम होता, आप इंग्लिश पढ़े, आप लोगों के स्कूलों में पढ़ाए, मालूम। वैसी हर मद के अंदर या तो अलीफ रहेगा, या रहेंगी, या वाव रहेगा।
मद बनते ही ये 3 हरफों से मद बनता है ना। कैसा बनता? ये 3 हरफों से। अगर अगर जबर या अलिफ वाले हर्फ से पहले जबर रहेगा उन्हें मद बनेगा। और ये यहाँ पर तरकीब क्या है, या साकिन से पहले जेर वाला हर्फ रहेगा ये मद बनेगा, वाउ साकिन से पहले पेश रहेगा इन्हें मद बनेगा। ये आप थोड़ा 2-3 दिन में आप ये याद आता है। तीन शक्लें हैं इसकी, 3 शक्लें हैं। कौन सी शक्लें हैं ये दिख रहा है आपको? खाली अलिफ से पहले जबर रहना, और ये या साकिन से पहले जेर रहना, और वाउ साकिन से पहले पेश रहना। ये 3 शक्लें हैं इसकी। कैसा मैं आपको बताऊं, जबर का आवाज ऊपर जाता, हम पढ़े अभी जबर का। अगर ये जबर के बाद जो है अलिफ लगा हुआ रहेगा किसी को, और खाली अलिफ पे कुछ नहीं रहना, खाली अलिफ लगा रहना। फॉर एग्जाम्पल अब ये बा पे जबर है और उसको अलिफ लगा हुआ है। जब भी जबर वाले हर्फ के बाद अलिफ लगा हुआ रहेगा इसकी मकदार 2 हरकत हो जाएंगी, इसकी मकदार 2 हरकत लंबा हो जाएगा। क्यों? जबर की 1 हरकत अलिफ लगने से 1 हरकत, 2 हरकत हो जाएंगी इसकी मकदार। जब भी कुरान में आपको जबर वाले हर्फ के बाद अलिफ लगा हुआ रहेगा आप उसको कैसा पढ़ेंगे? अगर खाली जबर रहेगा आप पढ़ेंगे बा, और अगर अलिफ लगा हुआ रहेगा उसको आप पढ़ेंगे बा। 2 हरकत, 2 बार उंगलियां बंद करके खोले उतना लंबा, 2 हरकत। इसकी मकदार कितनी है मध्य असली की? 2 हरकत। क्यों? जबर के बाद अलिफ है ना, इसीलिए 2 हरकत हो गया हमें। बा बा बा, समझ गया आप? ये मध्य असली बन गया, ये मध्य असली बन गया। ये वाला आप देखिए क्या है, खाली अलिफ से पहले जबर है, खाली अलिफ से पहले जबर है, आपको दिख रहा 2 हरकत हो गया है ना। जगह नहीं असली 2 हरकत। अब दूसरी शक्ल क्या है? ये पहली शक्ल थी, ये पहली शक्ल थी, ये दूसरी शक्ल है, ये तीसरी शक्ल है आखिरी वाले की, ये तीसरी शक्ल है। हाँ, 3 शक्ल है इसके, तीन है। 3 हुरूफ मद्दा कितने हैं? 3 है, अलिफ या वाव। ये कब मद होंगे, कब लंबे होंगे? और मद्दे असली की मकदार 2 हरकत है ना, मद्दे असली की मकदार 2। अब ये दूसरा हर्फ है, जेर के बाद या साकिन आना। या साकिन का मतलब जज़म वाली या रहना जरूरी है। पहले वाले में अलिफ खाली था वो है ना, क्योंकि अलिफ की शक्ल मैं बाद में बताऊंगा आपको एक क्लास के बाद। देखिए ये क्या है मालूम है, ये यहाँ पे क्या है, ये बा के नीचे जेर है और ये या साकिन है। जब भी या साकिन से पहले जेर वाला हर्फ रहेगा तो इसकी मकदार 2 हरकत होके इन्हें मध्य असली हो जाएगा। ये जेर की 1 हरकत, ये या का आवाज भी नीचे जाता है इसलिए इसकी भी 1 हरकत, 2 हरकत से पढ़ेंगे उसको। बी बी, अगर खाली बा के नीचे जेर रहता बी बी, अब क्या है बी बी, है ना। अगर खाली बा रहेगा तो बी 1 हरकत। और अगर उसको या साकिन रहेंगी, या साकिन का मतलब यहाँ पे सुकून रहना, जज़म वाली या रहना हो, खाली या नहीं रहना। खाली या रहा तो नहीं पड़ जाती, जज़म वाली या रहना। या साकिन से पहले जेर रहेगा उन्हें मध्य असली बन जाएगा, उसकी मकदार 2 हरकत रहेगी। ये पूरी क्लास वाले ये याद रखना, मैं अभी मिसालें बताऊंगा आपको आसान हो जाएगा। तीसरी शक्ल क्या है, वाउ साकिन से पहले पेश वाला हर्फ रहना। कैसा? वाउ साकिन से पहले पेश वाला हर्फ कैसा रहता है? ये बा पे पेश है, ये वाउ साकिन है। वाउ साकिन का मतलब जज़म वाला वाउ, सुकून वाला वाउ, और उससे पहले वाले हर्फ पे पेश, क्योंकि पेश का आवाज भी फॉरवर्ड जा रहा, पेश का आवाज भी फॉरवर्ड जा रहा। आप देख रहे पेश का आवाज भी फॉरवर्ड जा रहा, वाउ का आवाज भी फॉरवर्ड जा रहा। पेश की 1 हरकत, वाउ की 1 हरकत, कितना हो गया इन्हें? 2 हरकत हो गया। ये तीनों मध्य असली 2-2 हरकत के हैं। 2 हरकत से पढ़ना, कुरान में मध्य असली आ गया तो 2 हरकत से पढ़ना। पेश के बाद वाउ साकिन रहना, वाउ साकिन रहना मतलब जज़म वाला वाउ रहना, सुकून वाला वाउ रहना। 3 शक्लें हैं मध्य असली की, आपको समझ में आ गया। मध्य असली किसको बोलते हैं? हुरूफ मद्दा कितने हैं? 3, अलिफ या वाउ। ये कब मद होंगे, कब 2 हरकत वाले हो जाएंगे? जब खाली अलिफ से पहले जबर रहना, या साकिन से पहले जेर रहना, वाउ साकिन से पहले पेश रहना। आप इसको सीधा भी बोल सकते हैं, जबर वाले हर्फ के बाद खाली अलिफ रहना,
जेर वाले हर्फ के बाद या साकिन रहना, पेश वाले हर्फ के बाद वाव साकिन रहना, ये आप अच्छी तरीके से याद कर लो। सब जने जो है इसमें मास्टर हो जाओ, ये पूरा कुरान इस पे चलने वाला है। आपको मध्य असली मालूम रहना जरूरी है। मध्य असली जितना अच्छा मालूम रहेगा, आप बाकी के सबका तेज तेज पढ़ सकेंगे। और समझ में नहीं आ रहा तो आप 10 बार समझ में नहीं आया तो मेरे से पूछो, है ना। और 3 शक्लें क्या है आप देख लिए। अगर आप जबर है, खाली जबर है बा, अलिफ लगा हुआ है बा के नीचे जेर है खाली बी, उसको या साकिन लगा हुआ है बी, पेश बा के ऊपर पेश है बू, एक रकत, अगर उसको वाव साकिन लगा हुआ है बू। क्यों? अलिफ का आवाज ऊपर जा रहा, जबर का आवाज भी ऊपर जा रहा। आप देखेंगे, आपको ये खास बात है, जबर का आवाज भी ऊपर जा रहा, अलिफ का आवाज भी ऊपर जा रहा। और यहाँ पे देखेंगे आप, जेर का आवाज नीचे जा रहा और या का आवाज भी नीचे जा रहा, तो दोनों दो लंबे मिलके बड़ा हो गया। और ये पेश का आवाज फॉरवर्ड जा रहा और वाव का आवाज भी फॉरवर्ड जा रहा, ये भी 2 हरकत। ये फॉरवर्ड जा रहा, ये नीचे जा रहा, ये दोनों ऊपर, दोनों सेम डायरेक्शन वाले मिल गए। जबर और अलिफ मिल गए, वेरी गुड, है ना। जेर और या साकिन मिल गई, वेरी गुड। पेश और वाव साकिन मिल गए, वेरी गुड, मध्य असली हो जाते, है ना। अब मैं आपको बोला ये 1 2 3, आप इसको मैच करो। ये जबर है, ये जबर है, ये जेर है और ये जो है पेश है, ये पेश है। और यहाँ पर लिखा हुआ है अलिफ, यहाँ पे लिखा हुआ है वाव और यहाँ लिखा हुआ है या, है ना। ये वाव साकिन है, एक तरीके ये जबर का पेड़ कहाँ होता, जबर को मैच करो आप, जबर को इसमें जाके मैच करो। जबर अलिफ से पहले आना तो मध्य असली बनता, जेर या से पहले आना तो मध्य असली बनता, पेश वाव से पहले आना तो मध्य असली बनता। ये सही पेड़ है। आप जबर को या से नहीं मिला सकते, जेर को वाव से नहीं मिला सकते, पेश को अलिफ से नहीं मिला सकते, गलत पेड़ है ये। तो 2 हरकत नहीं बनेगा, उन्हें एक तरफ जा रहा, उन्हें एक तरफ जा रहा, कैसा बनेगा? दोनों एक तरफ एक डायरेक्शन में जाने वाले मिले तो ही लंबा होता हो, मिले तो ही लंबा होता। आपको अच्छा समझ में आ गया, माशाल्लाह। अब मैं आपको अब उसकी तख्ती बताऊं, तख्ती बताएंगे तो आपको बिल्कुल अच्छा समझ में आ जाएगा, बहुत ही जबरदस्त, आपको मुश्किल ही नहीं होगी। मैं उसकी तख्ती बता के आपको प्रैक्टिस करा दूंगा ना, एकदम जबरदस्त पड़ता। उसका तख्ती का मतलब क्या है? तख्ती मतलब पेज, उसका लेसन, तख्ती बोलते हैं उसको, ये तख्ती बोलते हैं, पेज, ये सवाल, ये लेसन को बोलते तख्ती, है ना। ये जो इसको ये लोग नूरानी कायदे में हर सबक को उसकी एक तख्ती है बोलती है। देख रहे तख्ती नंबर 4, यानी ये स्लाइड तख्ती माने स्लाइड, समझ गए। तख्ती नंबर 4 हुरूफ मद्दा यानी मद बनने वाले हर्फ। हुरूफ मद्दा बोले तो मद बनने वाले हर्फ। क्या बोल रहा हूँ नीचे, मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग सुनिए, उर्दू वाले उर्दू में समझ जाइए, नीचे इंग्लिश में भी है, वो भी बताता हूँ। जिनको उर्दू नहीं आती वो लोग इंग्लिश में भी देख सकते हैं। हुरूफ मद्दा 3 है। ये सबक जितना अच्छा आप पकड़ लिया ना मजबूती से, आप जल्दी सीख सकते हैं तजवीद। पूरे मदा इसी के ऊपर ठहरे हुए, यही मत पे, यही सबक पे। आप अच्छा पकड़ लो, मैं अच्छा आपको हर एक को पकड़ के जबरदस्त आपके दिमाग में ठोस दूंगा, मैं बेफिक्र हूँ, है ना। हुरूफ मद्दा 3 है। कितने हैं? 3, अलिफ या वाव, याद रख लीजिए सब। मैं पूछूंगा रोजाना हुरूफ मद्दा कितने हैं? 3 है मौलवी साहब। कौन से है? अलिफ या वाव। ये कब मद बनते हैं? तो आप बोलना जबर वाले हर्फ के बाद खाली अलिफ आना, जेर वाले हर्फ के बाद या साकिन आना, पेश वाले हर्फ के बाद वाव साकिन आना। या आप उसको उल्टा भी बोल सकते हैं, खाली अलिफ से पहले जबर रहना, या साकिन से पहले जेर रहना, वाव साकिन से पहले पेश रहना, ऐसा भी बोलो। चले, मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, आप पहले इसको पहली तख्ती देखिए, अलिफ वाली तख्ती है। हुरूफ मद्दा 3 है, अलिफ या वाव। इनको थोड़ा खींच कर पढ़े, क्योंकि इनकी मकदार 2 हरकत है ना, इसकी मकदार 2 हरकत है, इसलिए थोड़ा खींचना पड़ रहा। पहले जबर जेर पेश को बोले नहीं खींचो, क्योंकि एक ही हरकत थी इसकी मकदार। मध्य असली की मकदार कितनी है? 2 हरकत, तो इसीलिए बोल रहा थोड़ा खींच के पढ़ो। अलिफ जिससे पहले जबर हो, अलिफ जिससे पहले जबर हो। यहाँ पे इंग्लिश में लिखा, जो लोग उर्दू से वाकिफ नहीं है वो लोग। हुरूफ इल्लत और हुरूफ मद्दा, मध्य असली। हुरूफ मद्दा आर 3 टाइप्स, वो इल्लत बोलते हैं उसको,
وہ میں بعد में बताऊंगा इल्लत क्या है, ग्रामर है वो, छोड़ दो उसको. अलिफ बिफोर इट इज ए फथा, यानी जबर, अलिफ से पहले जबर होना बोल रहा. या साकिन बिफोर इट इज कसरा, या से पहले जेर होना बोल रहा. वाउ साकिन बिफोर इट इज दम्मा, पेश रहना बोल रहा. द हुरूफ मद्दा हैव टू बी प्रोलॉन्ग्ड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ वन अलिफ. 2 हरकत के बराबर पढ़ो बोल रहा. 2 हरकत इज इक्वल टू 1 अलिफ, वो बाद में पढ़ूंगा मैं. अब क्या करा उन्हें, पूरे 28 हर्फ है हमारे पास, अलीफ से लेके यहाँ तक कितने हर्फ है, 28. पूरे 28 हर्फ को उन्हें क्या करा, जबर लगा दिया और उसके बाजू अलीफ लगा दिया, और आपको मध्य असली हो गया उन्हें. अब आपको 2 हरकत से पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है. कैसा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आ बा ता सा जा, जबर की 1 हरकत, अलिफ की 1 हरकत, 2 हरकत खींच रहा हूं मैं, 2 हरकत लंबा करो. क्यों, मध्य असली की मकदार 2 हरकत है, 2 हरकत लंबा करके पढ़ना. उन्हें बोला ना थोड़ा खींचो बोल के जी. हा खा दा जा रो जा सा शा फो वो तो वो आ गो फा को के ला मा ना वा हा या, है ना. ये पूरे पढ़ जाए, सबको अलिफ लगाया उन्हें, सब की मकदार 2 हरकत हो. ये मध्य असली की पहली शक्ल है. कुरान में ऐसा रहेगा, आप 2 हरकत पढ़ना, जबर के बाद अलिफ लगा हुआ रहेगा, 2 हरकत पढ़ना, खींच के पढ़ना उसको. और क्या बोलना, ये मध्य असली है, ये मध्य असली की शक्ल है. अलिफ खाली रहना, उससे पहले जबर रहना, अलिफ खाली रहना, उससे पहले वाले हर्फ पे जबर रहना, तो मध्य असली हो जाता. अब उन्हें क्या करा, एक्सरसाइज, मश्क में उन्हें क्या करा, कलमे बनाया, कलमे, वर्ड्स बनाया, वर्ड्स बनाया, मध्य असली को लेके वर्ड्स बनाया. कैसा, आप गौर से सुनिए. जहां पे जबर है वो 1 हरकत है, जहां मध्य असली है वो 2 हरकत है. समझ में आ गया ना सबको. जहां पे मध्य असली रहेगा वहां 2 खींचना है, जरा 2 हरकत करना है. जहां खाली जबर जेर पेश रहेगा 1 हरकत, जल्दी पढ़ना. कैसा, ज़ादा खाफा ताबा जाहदा हासबा जुनाहु शारबा फरागा खादआ कातला साबरा ताला. तो क्या करें, जहाँ जबर है जल्दी पढ़ा उसको, जहाँ अलिफ लगा हुआ है खींचा में. सही. ये पूरा गेम तजवीद में क्या है मालूम है, 2 हरकत 1 हरकत का गेम है ये. आपको 1 हरकत और 2 हरकत का कंट्रोल आ गया तो समझना अब आप सही पढ़ सकते हैं कुरान. तो हम लोग तो सब गुडवर्ड है ना, कहीं खींच रहे हैं, कहीं नहीं खींच रहे हैं, कहीं दिल वाला तो रोक दे रहे हैं, कहीं दिल वाला तो नहीं रोक रहे हैं. हम तो फ्री है पूरा. नाजिरा है हमारा, नाजिरा जो है बहुत कमजोर रहता, बहुत गलतियां रहती है उसमें. हम उसी से काम चलाते चलाते ये उम्रों तक आ गए. अब आगे काम नहीं चल सकता उसका. नाजिरे में बहुत गलतियां होते, सही नहीं है वो पढ़ना. मैं आपको हदीस क्या सुनाया, अल्लाह ताला इस बात को पसंद करता है कि कुरान शरीफ को ऐसा पढ़ा जाए जैसा वो उतारा गया है. हम अपने हिसाब से पढ़ रहे, जैसा उतारा गया है वैसा थोड़ी पढ़ रहे हम लोग, है नहीं. इजी गोइंग हम लोग. अल्लाह ने बोलते रहते, हदीस बोलते रहती, अपन जो करने का है करते रहो, क्योंकि हम लोग बहुत बिजी है. हमारे को दुनिया के बहुत काम है, हम लोग को डिग्रियां लेना है, यूनिवर्सिटी को जाना है, नौकरियां करना है, बच्चों को पालना है. हमारी प्रियोरिटीज पूरे अलग है. दीन खाली साइड में रखे हम लोग अपने पसंद के हिसाब से. जो इजी है वो करेंगे, जो मुश्किल चीजें छोड़ देंगे. हाँ, आराम से, कोई मसला नहीं है. जब इस्लाम आया था, जब दीन आया था, जब हुजूर जो है मक्के में तबलीग का काम कर रहे थे, लोगों को बता रहे थे कि भाई ये इस्लाम है, इस्लाम में ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते. इस्लाम, अगर आप इस्लाम कबूल कर लिए, आप दीन कबूल कर लिए, तो आप ये चीजें छोड़ देना, ये चीजें नहीं करना. उलमा बोले क्या नहीं करना, झूठ नहीं बोलना. अरे अच्छा, दूसरा शराब नहीं पीना. अच्छा, फिर ये आप जिना नहीं करना, ये दूसरे गलत काम नहीं करना, वादा खिलाफी नहीं करना, वगैरह वगैरह, चोरी नहीं करना. ये तो बोले यार ये शराब छोड़ देना, अभी कैसा, शराब तो नहीं छोड़ सकते अपन. हाँ, और ये नहीं कर सकते हम, ये नहीं कर सकते. तो उन्होंने बोले सारी हम इस्लाम नहीं कबूल करेंगे, क्योंकि ये चीजें छोड़ना नहीं होता हमारे से.
हम लोग क्या करें, हाँ अच्छा इस्लाम हम तो पैदाइशी है ना, हाँ ठीक है हम इस्लाम कबूल कर लेते हैं, बहुत अच्छा मजहब है। उसके बाद जो चाहे कर रहे हैं आप जो चाहे कर रहे हैं, झूठ भी बोल रहे हैं आप, सूद भी खा रहे हैं आप शराब भी पी रहे हैं, और आप क्या अब देखो क्या क्या लोग करते रहते। हालांकि हम मुसलमान है, मगर वो कुफार क्या करे, वो मुशरिकीन क्या बोले, नहीं 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 हम झूठ से नहीं इज्तनाब कर सकते, हम जिना नहीं छोड़ सकते, हम जो है शराब नहीं छोड़ सकते, तो सारी हम इस्लाम कबूल नहीं करते, सीधा सीधा बोल दिया। अच्छे है बोला, बहुत अच्छे है। हम क्या करें, पहले कबूल कर लिए इस्लाम, और जो चीजें चलता बोले अल्लाह गफूर रहीम है। अरे यार आप नहीं कबूल करो इस्लाम, अगर आपसे नहीं हो सकता तो मुशरिकीन अच्छे है आपसे। आप कबूल कर लेके झूठ भी बोल रहे हैं, सूद भी खा रहे हैं, शराब भी पी रहे हैं, क्या क्या है सब, हर चीज कर रहे हैं जो जो इस्लाम में ममनू है, वो तमाम चीजें कर रहे हैं मुसलमानों के। व्हाट इज दिस? तो आप इससे तो बेहतर थे आप इस्लाम कबूल नहीं कर, बोलते भाई सारी मैं कंट्रोल नहीं कर सकता अपने आप को, मैं मुसलमान नहीं होता। हम लोग बोले अरे वो घर में पैदा हुए ना मुसलमानों के, चलो ठीक है कर लो जो चाहे करना है कर लो, क्या होता वो देखेंगे, आखिरत में देखेंगे, जो होता देखे, अल्लाह माफ करने वाला है। देख लो हर आदमी अपने गिरेबान में झांक के देख ले, इस्लाम में जो जो चीज मना है उन्हें कर रहा क्या नहीं कर रहा, और अगर कर रहा तो क्यों कर रहा उन्हें, फिर या तो निकल जाए ना इस्लाम से। जब बता दिए ना इस्लाम में ये हराम है, फिर आप इस्लाम भी कबूल करेंगे और वो भी करते रहेंगे। व्हाट इज दिस? ये तो दोगलापन है, ये तो इसी को तो बोलते हैं ना, ये मुनाफिक है, बोलते एक करते एक, बोलते कि मैं मुसलमान हूँ, ये नहीं करूंगा वो नहीं करूंगा, जाके छुप के कर रहे हैं आप। अल्लाह नहीं देख रहा क्या? वो देख रहा है ना अल्लाह ताला। लोगों के सामने नहीं करे, जाके पीछे जाके करेंगे, लोग वादा खिलाफी करेंगे, लोगों को धोखा देंगे, लोगों के पैसे खा जाएंगे, और मुसलमान भी बरकरार रहेंगे। हाउ इट इज पॉसिबल? इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। ओके सॉरी, आई एम ऑफ द सबक। तो मैंने, आप गौर से देखिए, ये जो मैंने पढ़ा है इस पे कहाँ जहां मद्दे असली है मैंने खींचा है, जहां खाली जबर है उसको जल्दी पढ़ दिया, क्योंकि उसको एक हरकत ही है, जहां मद्दे असली है वो दो हरकत है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट सबक है, आप इसको पकड़ लीजिए और जाके इसकी रिकॉर्डिंग भी सुनिए अगर समझ में नहीं आ रहा। दूसरा, फिर एक बार पढ़ रहा हूँ, गौर से देखिए। बिस्मिल्लाह। ज़ादा, खाफ, ताब, जाहद, हासब, जुनाहु, शारब, फराग, खादअ, कातल, साबर, ताला। देख लेना, जहां पे मद्दे असली था, जहां जबर के बाद अलीफ था, मैं वहां पे दो हरकत खींचा, जहां खाली जबर है उसको जल्दी पढ़ा। ठीक है ना? ये पहली शक्ल थी उसकी, जबर के बाद अलीफ वाली पहली शक्ल थी, खाली अलीफ से पहले जबर वाली पहली शक्ल थी। अब दूसरी शक्ल क्या है ये मैं बता रहा हूं। ये दूसरी शक्ल, जेर वाले हर्फ के बाद या साकिन रहना, जेर वाले हर्फ के बाद या साकिन रहना। अब आपको एक चीज और बता दूंगा, या समझा के आऊंगा मैं आपको, तो आपको समझ में आता। ये देखिए, ये है या, ये क्या है या, ये या साकिन है, यहाँ पे जज़म है तो ये या सुकून है तो ये या साकिन होगी। ये या जो है कलमे के आखिरी में आई तो ऐसा लिखते आप, कलमे के बीच में आ गई या, अगर कोई भी वर्ड के बीच में या आ गई तो ऐसा लिखते उसको, दो नुक्तों से लिखते उसको। अगर बीच में आ गई तो ऐसा लिखते, ये और सुकून यहाँ लगा देते, या ऐसी रहती है। है ना, समझ गया ना? जैसे ये है ना, ये है, ये आपको समझ में आ गया है ना? है ना? आप देखिए, अब फॉर एग्जाम्पल ये जीम है, इसके नीचे जेर है, अब ये या साकिन है, ये नून पे जबर है ना? अब कैसा पढ़ेंगे आप? जीना, जी, ये दो हरकत हो गई, एक जेर की एक या की। जी, या कलमे के बीच में आ गया तो दो नुक्तों से लिखते,
اور کلمے کے آخری میں آ گیا تو ایسا لکھتے ہیں نی نی آخری میں. اب اس کے بعد کوئی دوسرا حرف نہیں ہے, آخری ہے وہ, ہے نا. غیبی ہے نہیں, ریبی آخری میں آ گیا تو یہ پورا یا لکھتے بڑا. اور اگر یا بیچ میں آ گیا, یہ یا بیچ میں آ گیا تو ایسا 2 نقطوں سے لکھتے. سب کو معلوم ہے, یہ قرآن میں ایسا آتا ہے. سمجھ گئے نا آپ لوگ؟ نہیں سمجھ آیا تو میرے سے پوچھنا پھر. اب میں بتا رہا ہوں یا کی تختی بتا رہا ہوں. یہ تختی میں کیا بتا رہا ہوں انہیں, آپ دیکھیے یہ یا ساکن جس پر جزم ہو, یا جس پر جزم ہو اور جس سے پہلے زیر ہو. کیا بول رہا ہوں میں؟ یا جس پر جزم ہو یعنی ساکن ہو, یا اور اس سے پہلے والے حرف پہ زیر ہو. جزم کی پہچان کرائیں, میں نے کرا دی پہچان آپ کو, آپ کو آتے یاد جزم پڑھا دیا میں. اور بتلائیں جس حرف پر جزم ہو اس کو پچھلے حرف سے ملا کر پڑھیں گے, وہ بھی بتا دیا. انگلش میں بول رہا, یا preceded by ایک کسرہ, یعنی یا سے پہلے کسرہ والا حرف ہے, زیر والا حرف ہے. The letter which has a jazm یا سکون on it should be read by joining it to the letter before it. جزم والا حرف اپنے سے پہلے والے حرف کو ملا کے پڑھا جاتا, بول رہا ہوں. اب یہاں کیا کرا انہیں, الف سے لے کے یا تک سب کو زیر لگا دیا. الف سے لے کے یا تک سب کو زیر لگا دیا, اور اس کے بعد یا ساکن بھی لگا دیا, مد اصلی بنا دیا. پہلے الف کے نیچے زیر ہے, پھر با, پھر تا, پھر سا, اور سب کے ساتھ یا ساکن لگی ہوئی ہے, جزم والی یا لگی ہوئی ہے. اب زیر کی ایک حرکت, یا کی ایک حرکت. کیسا پڑھیں گے؟ ای بی ٹی سی جی, یہ پورا مد اصلی ہو رہے ہیں. کیوں؟ زیر کے بعد یا ساکن آ رہی ہے نا. ایک حرکت زیر کی, ایک حرکت یا کی. جی ہی خی دی وی ری زی سی شی سی وی ٹی وی ای ری فی خی کی لی می نی وی ہی ای یی یی. ایک یا کے نیچے زیر ہے اور ایک یا کے ایک یا ساکن ہے. 2 یا کیسا لکھا انہیں؟ ایک یا جو پہلے آ رہی وہ 2 نقطوں سے لکھا, دوسری یا جزم والی آخری آ رہی, آخری میں آ رہی تو پوری لکھا. اب اس کو کیسا پڑھیں گے؟ ای نہیں پڑھیں گے, جی جی یا وائی سے پڑھیں گے, وائی سے. جی یا پڑھیں گے, ای نہیں پڑھیں گے. زیر خالی زیر پڑھ کے یا کو نہیں چھوڑیں گے, یا کو پڑھیں گے, ہے نا. اس سے پہلے حمزہ پہ زیر ہے اور یا ساکن. ای وہ صحیح ہے, ایک آواز آئے گا اس میں, لیکن یہ میں یا کا آواز آئے گا, وائی سے پڑھیں گے. تو یہ پورے مد اصلی کی شکل ہے. یہ دوسری شکل کیا ہے؟ زیر والے حرف کے بعد یا ساکن ہے, یا ساکن سے پہلے زیر والے حرف ہے پورے. 2 حرکت کھینچ کے پڑھے, ایک زیر کی ایک یا کی. یہ دوسری شکل ہے مد اصلی. پہلی شکل کیا تھی؟ خالی الف سے پہلے زبر. یہ کیا ہے؟ یا ساکن سے پہلے زیر. اب نیچے مشق کرا ہے, ایکسرسائز کرا دیا انہیں, پورے بتایا اب یہاں پہ کیسا مد اصلی کو 2 حرکت پڑھنا اور ایک حرکت کو ایک حرکت کیسا پڑھنا. اب پہلا کیا ہے؟ پہلے والے میں 2 مد اصلی ہے, اور یا ایک بیچ میں آ گئی تو پہلے 2 نقطوں سے لکھا, ایک یا آخری میں آ گئی تو بڑی یا لکھا, ہے نا. دال پہ زیر ہے, 2 مد اصلی ہے کلمے میں. انہیں وہاں پہ نشان ڈال کے, 1 ڈال کے نیچے اس کا ایکسپلینیشن بھی لکھا نیچے, یا آخری میں لکھا دیکھے نیچے ایکسپلینیشن ہے. وہ 1 جو مارک کرا وہ نیچے اس کا ایکسپلینیشن ہے. کیسا پڑھیں گے اس کو؟ دینی 2 مد اصلی ہے. ایک یا ساکن سے پہلے دال پہ زیر ہے, دوسری یا ساکن سے پہلے نون پہ زیر ہے. 2 مد اصلی ہے اس میں. ہاں کبھی کبھی ایک کلمے میں 3 4 مد اصلی آتے ہیں. آپ کنفیوز نہیں ہونا, ابھی قرآن پڑھتے وقت میں اچھا تفصیل سے بتاؤں گا آپ کو. جہاں جہاں مد اصلی آ رہا 2 حرکت سے پڑھنا. کیسا پڑھیں گے؟ دینی فیہی ارنی کتابی. کتنے مد اصلی ہے کتابی میں؟ 2 مد اصلی ہے. ایک خالی الف سے پہلے تا پہ زبر ہے, ایک یا ساکن سے پہلے با پہ زیر ہے. ایک الف والا مد اصلی ہے, ایک یا والا مد اصلی ہے. کی کاف کے نیچے زیر ہے, ایک حرکت. کی تا مد اصلی ہے, بی مد اصلی ہے نا. کاف کو جلدی پڑھیں گے, خالی زیر ہے. تا میں کیا ہے؟ مد اصلی ہے, زبر کے بعد الف ہے,
किताबी, दूसरे में क्या है, बा के जेर के बाद या साकिन है, दो मध्य इसलिए उसमें दो वक्त खींचना है उसमें, समझ गया ना। अगला पढ़ रहा हूं, उजीबु युवारी, कितने मध्य इसलिए, दो मध्य इसलिए, वाह में वाऊ के जबर के बाद अलीफ है, री में रा के जेर के बाद या साकिन है, युवारी, या एक हरकत, यू, बस यू, और फिर वाह री, दो मध्य इसलिए, वाह में री में, मफातीहु, मफातीहु। अब आप देख रहे कैसा कुरान पढ़ना है हमारे को, आहिस्ता आहिस्ता समझ में आ रहा है आपको। हर कलमे के अंदर मध्य असली है, हम नहीं पढ़ते ऐसा, हम कुरान पढ़ते हो मैं मफातीहु पढ़ देते, नहीं पढ़ना है मफातीहु, जहां जहां मध्य असली है दो हरकत करना है, मफातीहु राज़िकीना, है ना, जहां एक हरकत है जल्दी पढ़ना है, जहां मध्य असली है दो हरकत करना। ये पूरा गेम एक हरकत और दो हरकत का है। आपको हरकत के ऊपर कंट्रोल आ गया, एक हरकत पे और दो हरकत पे कंट्रोल आ गया ना, आपके पढ़ने में एक ट्यून बनेगी, एक लय बनेगी, एक म्यूजिक कैसा आ जाएगा, एक अच्छा सही तरज आ जाएगी, पढ़ने का सही तरीका आ जाएगा, पढ़ने में सलीका दिखेगा। देखिए आप कैसा पढ़ रहा हूं मैं, राज़िकीना इबादी अज़ाबी तमासीलु मक़ादीरु अखीही बनीही। क्यों 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 अच्छा दिख रहा, मैं जहाँ दो हरकत है दो हरकत कर रहा हूँ, जहाँ एक हरकत है जल्दी पढ़ रहा हूँ, जहां जहां मध्य असली है मध्य असली कर रहा हूँ। आप लोग भी वैसा करना शुरू कर दो, हर जगह देखते रहो कहाँ है मध्य असली, सही पढ़ो, सही पढ़ते आपकी ट्यून खुद ब खुद सही हो जाएंगी पूरों की। आप मेरे साथ लगे रहो, मैं बोल रहा हूँ, मैं आप लोगों को खारी बना दूंगा, खारी बेहतरीन कुरान पढ़ने वाला बना दूंगा। आपकी नमाज में मजा आएगा, आपकी कुरान पढ़े तो मजा आएगा, आप नमाज इमाम तिलावत कर रहा तो सुन के मजा आएगा आपको। हाँ, कोई खारी की कैसेट सुनेंगे तो मजा आएगा, क्योंकि जब आपको समझ में आएगा क्या हो रहा। अभी तो आज तो पहला लेसन बता रहा हूँ, जब पूरे 20 लेसन हम सीख लेंगे तो आप देखो क्या मजा आएगा सुनने का, पढ़ने का। हाँ, और कुरान एक ऐसी चीज है, बहुत जबरदस्त किताब है, आपको बहुत लुत्फ आएगा पढ़ने का, सवाब अलग मिलेगा, है ना। तो चले क्या सीखे हम ये इसमें क्या करा उन्हें, क्योंकि हम अलिफ का मत पढ़ के आ गए, खाली अलिफ से पहले जबर पढ़ लिए थे, अब उन्हें या साकिन से पहले जेर, दोनों को मिला के मिक्स एक्सरसाइज कर दिया उन्हें, दोनों किस्म के मध्य असली इसमें डाल दिया। अब दो और गौर से दोनों मध्य असली को सही पढ़ना है, एक हरकत वाले को एक हरकत करना है। कैसा करेंगे, फिर एक बार पढ़ो, सुन लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीनी फीही अरिनी किताबी उजीबु युवारी मफातीहु राज़िकीना इबादी अज़ाबी तमासीलु मक़ादीरु अखीही बनीही। अखीही में क्या है, खी के खा के जेर के बाद या साकिन है, वहां पे खींचना है, ही को नहीं खींचना है, पहले अलिफ को नहीं खींचना है। अखीही जो एक हरकत वाले है, एक हरकत, जहां मध्य असली है दो हरकत, जैसा ऊपर की लाइन है और ऊपर की लाइन, राज़िकीना, रॉ मध्य असली है, जी एक हरकत है, खीना मध्य असली है, जहां मध्य असली है वहीं दो हरकत करना। ना आखिरी में क्या है, ना जल्दी पढ़ना, खाली जबर है ना, कहीं कहीं जबर के बाद अलिफ आता जब मध्य असली होता है, या नहीं है। इबादी अज़ाबी तमासीलु मक़ादीरु, देखिए ना कैसा कंट्रोल है, दो हरकत एक हरकत, दो हरकत एक हरकत। आप अच्छा पढ़ेंगे खुद ही ट्यून बन जाएंगे। सबको समझ में आ गया। मैं पेश वाली तख्ती बताया हूँ, आज का सबक खत्म करेंगे। 3 तख्तियां बता दिया, तीनों तख्तियां मैं आपके होमवर्क में डालूंगा, मेरा वॉइस मैसेज भी रहेगा उसमें, मैं पढ़ के भी बताऊंगा, घर में खूब प्रैक्टिस करना मेरी वॉइस मैसेज के साथ,
और पूरी क्लास की रिकॉर्डिंग भी डालूंगा, हर तरीके से आपको एक्यूप्ड रहेंगे, आप एक्यूप्ड यानी फुल, आप हर तरफ से कहीं छूटेंगे नहीं, खूब प्रैक्टिस कर सकते घर में, आप मेरी वॉइस मैसेज भी सुन सकते, रिकॉर्डिंग भी सुन सकते, फिर एक बार पूरा समझाऊंगा। अब कल आप आते, मैं सबसे ये तीनों पेज पढ़ाऊंगा, सब लोग सही पढ़ के बताना, कल आपका वो टेस्ट रहेगा। मैं आप तीसरी आखिरी वाली बता दूंगा। मध्य असली की आखिरी शक्ल क्या है? पेश वाले हर्फ के बाद वाव साकिन रहना, क्योंकि पेश का डायरेक्शन भी वही है, वाव का डायरेक्शन भी वही है। ये भी मध्य असली की तीसरी शक्ल है। क्या बोल रहा है यहाँ पे उन्हें? वाव जिस पर जज़म हो और जिससे पहले पेश हो, वाव जिस पर जज़म हो यानी वाव साकिन हो और उससे पहले पेश हो, थोड़ा खींचे और मारूफ पढ़े, यानी 2 हरकत करो और खींचो बोल रहा है इसको। क्यों? ये मध्य असली है, 2 हरकत है इसकी मकदार। जबरदस्त पेश की मकदार 1 हरकत है, मध्य असली की मकदार 2 हरकत है। सही है ना? वाव प्रेसिडेड बाई ए दम्मा, पेश, वाव से पहले पेश होना बोल रहा हूं, वाव साकिन से पहले। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करा उन्हें? अलीफ से लेके या तक सबको पेश लगा दिया, अलीफ से लेके या तक सबको पेश लगा दिया और उसके बाद वाव साकिन लिख दिया। उसके बाद वाव साकिन है, यानी वाव साकिन से पहले पेश वाला हर्फ है। अब मध्य असली हो गया, 2 हरकत हो गए। कैसा पढ़ेंगे? बिस्मिल्लाह। ऊ वो होंठ गोल रहना। पेश पढ़ते वक्त में क्या बोला आपको पहले दिन? पेश पढ़ते वक्त में होंठ गोल रहना, वाव पढ़ते वक्त में भी गोली रहना। तो 2 हरकत पढ़े तक होंठ गोल रहना। ऊ वो तू, अगर आप होंठ गोल नहीं करेंगे, उसका प्रोनाउंसिएशन सही नहीं रहेगा, उसका गेटअप नहीं आएगा, उसकी अदायगी सही नहीं होगी। होंठ गोल रहना बोल रहा हूं। तू, सू, जू, हू, खू, दू, जू, रू, जू, सू, शू, फू, वू, तू, वू, रू, ओ, फू, खू, कू, लू, मू, नू, वू, हू, ऊ, यू, यू, या पढ़ना, या वैसे यू, यू। ठीक है, आप पूरा घर में हर आदमी ये तख्ती 3-3 बार पढ़े, प्रैक्टिस करें घर में। सब लोग ये तख्ती भेज रहा हूँ, ये पेज भेजता हूँ, सबके पास नूरानी खादा प्रिंट करके हार्ड कॉपी हाथ में रहना। मैं कब से बोल रहा हूँ, क्लास शुरू होने से पहले से आपको भेज रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ घड़ी घड़ी। इसकी हर आदमी जाके ज़ेरॉक्स करा, इसके ये नूरानी खादा प्रिंट करके हाथ में पकड़ के घर में दिन भर प्रैक्टिस करे खाली टाइम पे। अब नीचे मश्क कराया, नीचे क्या है? मश्क है, एक्सरसाइज। क्या बोल रहा हूँ मैं? एक्सरसाइज, प्रैक्टिस करो बोल रहा। अब क्या है? आप खाली अलिफ से पहले जबर पढ़ लेके आए, या साकिन से पहले जेर पढ़ लेके आए आप। अब आप वाव साकिन से पहले पेश पढ़ रहे हो, ये सबक है। तीनों मिक्स करके यहाँ पे बनाया हमने, क्योंकि आप सब पढ़ लिए, तीनों शक्लें पढ़ लिया मध्य असली की। अब तीनों को मिला के मिक्स करके एक्सरसाइज बनाया, हम पढ़ रहा हूँ, गौर से देखिए आप। नू, नू को खींचेंगे, हु को नहीं खींचेंगे। हु पे आप नूहू गलत है, हु पे खाली पेश है, हु के बाद वाव नहीं है, नून के बाद वाव है। नूहू, तूरू, कैसा पढ़ेंगे? तूरू, रा को 1 हरकत जल्दी। तूबू, यहाँ पे 2 मध्य असली है, तू में भी वाव लगा हुआ है, बू में भी वाव लगा, दोनों पे पेश है, दोनों में वाव साकिन लगा हुआ, 2 मध्य असली है। यहाँ कैसा पढ़ेंगे? तूबू, नूरू, कॉलू। क्या है यहाँ पे? 2 मध्य असली है, एक अलिफ वाला एक वाव वाला। खाली अलिफ से पहले खौफ पे जबर है, वाव साकिन से पहले लाम पे पेश है, 2 मध्य असली हो गए। कैसा पढ़ेंगे? कॉलू, यूही, 2 मध्य असली है, एक वाव साकिन से पहले पेश है, एक या साकिन से पहले जेर है, 2 मध्य असली है, 2 जगह, वहां पे भी 2 हरकत है, वहां पे भी 2 हरकत है। यूही, यकूमु, यकूमु, एक ही मध्य असली है, यहाँ पे जबर है, जल्दी पढ़िए। खू 2 हरकत करेंगे, क्यों? पेश के बाद वाव साकिन है। मुंह पेश है खाली, 1 हरकत। यकूमु, तकूनु, समझ गए ना? जहाँ मध्य असली है वहीं पर ही 2 हरकत, जहाँ 1 हरकत है 1 हरकत, समझ गए ना? नीचे का हिस्सा।
हारून, कितने मध्य असली है? 2। हारून, एक खाली अलिफ से पहले जबर है, एक वाव साकिन से पहले पेश है। 2 मध्य असली है, 2 डिफरेंट किस्म के मध्य असली है। 2 हरकत 1 हरकत। हारून, हारून, दाखिरून, दाखिरून, जहां मध्य असली है वही होना 2 हरकत। खी में जल्दी पढ़ना है, खाली जेर है। रू में मध्य असली है, ना पे एक जबर है, खाली जल्दी पढ़ना है। दाखिरून, सबखूना, सबखूना, सीन जल्दी पढ़ना है, बा जल्दी पढ़ना है। खू मध्य असली है, पेश के बाद वाव साकिन, ना जबर के बाद खाली अलिफ है, 2 मध्य असली है आखिरी में। सबखूना, नीचे की लाइन, बासितूना, ना जल्दी एक ही हरकत, अलिफ नहीं है यहाँ के नून के बाद। हाँ, बा मध्य असली है, खाली अलिफ से पहले वापस है। बासी एक हरकत, सी, तू मध्य असली है, ना एक हरकत। बासितूना, राजिऊना, जहां मध्य असली है 2 हरकत करना। तो आप ये 2 हरकत और 1 हरकत का आपका इतना अच्छा पढ़ना आप, तो क्या होता है, एक लय बनती है, म्यूजिक कैसा सुने आता, आपका कंट्रोल मालूम होता, और पढ़ने में एक किस्म की नजाकत और एक किस्म की यानी एक किस्म का खूबसूरती आती है ना। आप मध्य असली को सही इंप्लीमेंट करें तो बहुत अच्छा रहता। अब आपको क्या बताया मैं, 3 चीज, तीनों तख्तियां बता दिया, और ये तख्तियां मैं भेजूंगा। आप ये तीनों तख्तियां घर में बैठ के रगड़ना, लगाना, मेरी वॉइस मैसेज सुनना, और कहाँ मध्य असली 2 हरकत करना, कोई गलती नहीं रहना, डायरेक्शन जबर जेर पेश का सही रहना, अल्फाज सही रहना। अब आप घर में खूब काम कर, कल आते ही मैं नामा पुकारना शुरू करूंगा, एक एक का पूरे तीनों तख्तियां पढ़ूंगा। हर आदमी रेडी रहना, उल्टा सीधा नहीं करना, है ना, प्रैक्टिस करके आना, और फिर मेरी वॉइस मैसेज को सुनते हुए प्रैक्टिस करना। कोई समझ में नहीं आ रहा तो फिर पलटा के उसको सुनते रहना, 10 बार सुन सकते हैं आप उसको। वॉइस मैसेज में भेज दिए तो आप जितने बार चाहे लगा के सुन के सही कर ले सकते, कंट्रोल रहता बिल्कुल, है ना। तो आप लोग क्या करिए, और हमारे पास क्लास में माशाल्लाह 100 लोग हैं, आप लोग पूरे, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, भाई देखो ये कुरान सही पढ़ना जो है, ये मैं जैसा आपको पहले दिन बताया, हर मुसलमान को कुरान सही पढ़ना है। गलत पढ़े तो माने अलग हो जाते हैं, उल्टा सवाब मिलने का आजाब मिलेगा, है ना। माने अरबी बहुत ही जो है सेंसिटिव लैंग्वेज है, बहुत सेंसिटिव लैंग्वेज, मैं बाद में बताऊंगा, है ना। हमको बहुत एहतियात की जरूरत है। हम, और सबसे पहला हक, सबसे पहली ड्यूटी कुरान की हर मुसलमान की क्या है, सही पढ़ना। दूसरा हक क्या है, दूसरी ड्यूटी क्या है, उसको समझना, क्या अल्लाह मियां बोल रहा हमारे से, क्या उसमें हलाल है, क्या हराम है, क्या डूज है, क्या डोंट्स है, क्या नबियों के किस्से है, हमारे जिंदगी गुजारने का तरीका है, पूरा भरा हुआ है कुरान हिदायत से। अल्लाह ताला हिदायतें दे रहा है मुसलमानों को, ऐसा करो, ऐसा करो, माशरे में ऐसा जिंदा रहो, लेन देन ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। पूरा हमको पढ़ के सीखना है ना। हाँ, आप सीखेंगे तो करेंगे ना। आप ये मौलवियां सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, हम खुद पढ़ के, हम खुद तर्जुमा पढ़ के सीखेंगे ना, है ना। कुरान को समझना, दूसरा हक। तीसरा हक क्या है, तीसरा हक है आप उसको, जो भी आप सीखिए, जो भी मैसेज आप कुरान में जो भी आपको ऑर्डर मिला, जो भी हिदायत मिली, आप उसको अपनी जिंदगी में अप्लाई करना, उसको 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 प्रैक्टिकली करके दिखाना। हो जो चीजें अल्लाह मियां बोल रहे हैं, हलाल क्या है, हराम क्या है, इम्प्लीमेंट करना अपनी जिंदगी में। चौथा हक क्या है कुरान का, आप कुरान के मैसेज को दूसरों तक पहुंचाना, ये हमारा काम है। हम दुनिया में दावती काम करने के लिए आए। दुनिया में जो बुराइयां हैं, खराबियां हैं, जो लोग गलत मजहबों पे चल रहे हैं, उनको दिखाना है भाई ये गलत है, ये सही है। हम ही नहीं चल रहे हैं, दूसरों को कैसा बताएंगे हम। उल्टा इस्लाम को देख के भाग रहे हैं इस्लाम से, हमारे हालत देख के, हमारे हरकत देख के वो लोग नजदीक नहीं आ रहे इस्लाम के, क्योंकि हम चल रहे ही नहीं उसमें। हम बोलते एक करते एक, नाम अच्छा रख लिए, बाबा रख दिए नाम बचपन में, अच्छा फलां खान, फलां 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 नाम, कामा पूरे औंधे, कामा पूरे औंधे। हम इंशाल्लाह सही पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, उस पर अमल करेंगे, उसको दूसरों तक पहुंचाएंगे, उसको दूसरों तक पहुंचाएंगे। जब आप दूसरों तक पहुंचाएंगे ना, तो माशरा अच्छा हो जाएगा। हाँ, ये दुनिया में जो
یہ جو دنیا میں برائیاں دکھ رہی ہیں, دنیا میں خرابیاں دکھ رہی ہیں, آپ دین کا کام نہیں کرنے کی وجہ سے, آپ دعوتی کام نہیں کرنے کی وجہ سے ہو رہے ہیں. آپ خود اچھے بننا ہے اور لوگوں کو اچھا کرنا ہے, یہ مسلمانوں کا زندگی کا مقصد. نبی بولے اب اور کوئی نبی نہیں آئیں گا, اب تم لوگ خود دعوت کا کام کرنا. سب ہم لوگ بولے اچھی بات ہے بول کے کیا کرے, اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیے. آپ اپنی دل میں جیسا آیا ویسا کر رہے ہیں, خود ہی نہیں چل رہے, دوسروں کو بولنے کو شرم یعنی منہ ہی نہیں ہے بولنے کے لیے. دوسروں کو کیسا بولیں گے, یہ نکو کرو, خود کر رہے ہیں, خود جو ہے سود کھا رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں, وعدہ خلافی کر رہے ہیں, ہر برائی کر رہے ہیں. تو اینی وے وہ ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے. آپ لوگ جو ہے پکڑ لو قرآن کو اور میرے مشن کے ساتھ جڑ جاؤ, ہے نا. 95% لوگوں کو قرآن پڑھنے نہیں آتا ہمارے مسلمان میں, بڑی افسوس کی بات ہے. تو یہ میرا مشن ہے, میں چاہ رہا ہوں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو قرآن ان کا صحیح ہو جائے. میں خود کوئی مولوی نہیں ہوں, کوئی حافظ نہیں ہوں, کوئی عالم نہیں ہوں. میں جو ہے آپ کے ساتھ جو ہے پروفیشنل اکاؤنٹنٹ ہوں, اور میرے کو یہ مشن ہے میرا. میں اس کو یہ کام کو پھیلانے کے لیے پوری کوشش کر رہا ہوں. آپ لوگ بھی اچھا قرآن پڑھنا سیکھ کے جو ہے میرے مشن میں میرے ساتھ دیجیے, میرے ساتھ آئیے, اور آپ اچھے استاد بن کے پڑھانے والے بنیے. کم سے کم اپنے لیے اچھا پڑھیے, کچھ بھی کریے بڑا. تو دس از آل آئی وانٹ ٹو ٹیل یو اباؤٹ. تو آپ لوگ کر کے آئیں گے. کل کا ہوم ورک بھی بتا دیا میں آپ لوگوں کو الحمدللہ. تو میں آپ کو اب دعا پڑھا کے آج کا سیشن ختم کروں گا, اور یہ جو جتنے چیزیں میں بولا اس کی ریکارڈنگ بھیجوں گا. آپ گھر میں کل پریکٹس کر کے کل کلاس شروع. جی ہلو جی محترم جی حضرت اس میں کل کا سبق رہ گیا تھا. ایک آدمی بات کرے بس. جی جی حضرت کل کا سبق رہ گیا تھا کچھ لوگوں کا. ہاں میں پڑھاؤں گا, جلدی نہیں ہے. اب پورے 100 آدمی کو جو ہے اب اگر آپ میں تھوڑا اس کا بھی انتظام کروں گا, تھوڑا ویٹ کریے, 2 دن آپ ویٹ کریے. میں سب کو ہر آدمی کو پڑھے ویسا انتظام کر رہا ہوں. آپ ذرا ویٹ کریے. جزاک اللہ جزاک. پہلے تو السلام علیکم مولانا. وعلیکم مولانا السلام. میں گروپ میں نہیں ہوں, اور میں نے کل آپ کو واٹس ایپ میسج میں اپنا نمبر بھیج دیا, نام بھیج دیا آپ گروپ کے میں پاس ایڈ کرنے. میرا جو آپ کو کیسا معلوم ہوا, آپ کے پاس وہ آیا نا, وہ سلائیڈ آئی تھی آپ کے پاس. کون سی ہمارے نمبر؟ سلائیڈ کے نیچے لنک دیا ہوا ہے, آپ وہ لنک دبائیے, آ جاتے آپ گروپ میں. سلائیڈ کے نیچے لنک ہے. اگر آپ کے پاس نہیں ہے لنک, اگر تو آپ کیا کریں, میرا نمبر لکھا تھا نا, میں آپ نوٹ کر لیے میرا نمبر. میں نے آپ کو یہاں سے واٹس ایپ کر دیا میرا نمبر اینڈ آل دیس تھنگس کب ایڈ کرنے کے لیے. کب کل. تو میں ایڈ کر دیا نا آپ کو. نہیں ابھی میرے کو وہ گروپ نہیں آ رہا, ابھی نہیں آ رہا. اچھا آپ ابھی میں جو نمبر لکھا ہے یہاں پہ, ہاں وہی نمبر. اب دوبارہ بھیجیں, اب پھر بھیجیں. آپ میرے کو بولے میرے کو گروپ میں ایڈ کرو, میں آپ کو لنک بھیجوں گا, آپ دبا کے خود ہی ایڈ ہو جانا, یا میں ایڈ کر دوں گا, کوئی جیسے مشکل نہیں. یہ نمبر آپ کے پاس ہے, میرا نمبر. ہاں میرے پاس نمبر ہے. آپ میرے کو کریے, میں ابھی بھیج دیتا ہوں. شکریہ. اور کسی کو کچھ بولنا ہے؟ جی محترم, اس ایکسرسائز کے اوپر لکھا تھا واو معروف. وہ معروف کیا ہوتا ہے؟ معروف صحیح پڑھنے کو بولتے ہیں معروف, صحیح طریقہ. واو معروف. ہیلو کہاں لکھا؟ گزارش تھوڑا کھینچے. جناب, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. 1 منٹ, ان کا جواب نہیں ہوا, ذرا صبر کریں. تھوڑا کھینچے اور معروف پڑھے, یعنی صحیح پڑھے. تھوڑا کھینچے اور معروف پڑھے کا مطلب ہے صحیح پڑھے. معروف مانے جو رواج ہے, جو معاشرے میں جو چیز مروج ہے, جو مشہور ہے, جو اچھا سمجھا جاتا ہے, ویسا پڑھے. جی جناب, کون ہے نیکسٹ, کون ہے, کیا پوچھ رہے تھے؟ حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضرت کچھ لوگوں کے صبح 4 بجے سے ہی کیمرے آن ہوتے ہیں, اور ان کی آوازیں آتی رہتی ہے. ان سے گزارش ہے کہ وہ کیمرے بند کرے اور میوٹ کیا کرے. وہ صبح 4 بجے سے ہی کیمرہ آن رکھتے ہیں. بھائی اگر آپ لوگ جلدی جوائن کر رہے ہیں تو اپنا کیمرہ بھی بند رکھیے, مائک بھی بند رکھیے, تاکہ دوسروں کو ڈسٹرب نہیں ہو. ٹھیک ہے. السلام علیکم. جب کلاس ہو رہی ہے اور جب میں پڑھنے کے لیے بولوں گا, جب مائک آن کرنا, جب تک ضرورت نہیں ہے. جی کون ہے نیکسٹ, کون ہے؟ ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میں نیا ممبر ہوں, تھوڑا گروپ میں ایڈ کر رہے ہیں مجھے. گروپ میں آپ کا میں یہاں پہ نمبر لکھا تھا, آپ کے نمبر پہ میسج بھیجیں. میرے کو آپ کا نہیں معلوم ہے نا, آپ کا فون نمبر. یہ دیکھیے, یہ میرا نمبر ہے, نوٹ کر لیں. میرے کو اس پہ گروپ میسج بھیجیں. 7893516636. یہ میرا واٹس ایپ کا نمبر ہے. آپ اس پہ میرے کو میسج کر کے بولے, میرے کو
मैं या तो लिंक भेजूंगा आपको दबा के ज्वाइन करने के लिए, या तो जी। फिर मैं खुद ऐड कर दूंगा आपका नंबर, ठीक है? चलो इंशाल्लाह। आप मेरे को मैसेज भेजें। और कौन बोल रहा है? किसी कोई प्रॉब्लम है? किसी को कोई सवाल करना है, कोई भी जनरल सवाल, किसी को भी कोई कुछ पूछना है तो पूछ ले। अस्सलाम वालेकुम मौलाना सर। वालेकुम मौलाना सर वालेकुम कल सलाम। मुझे लिंक नहीं आई सर। क्या मतलब है यार? ये देखिए लिंक जूम की लिंक आप बोल रहे हैं? हाँ सर कल नहीं आई सर, मेरा लेसन रह गया कल वाला सर। ला हौल वला कुव्वता इल्ला। ये देखिए, ये जो जूम की लिंक है जो पहले दिन ग्रुप में डाली थी, 40 दिन तक वही लिंक है, रोज नहीं चेंज होगी। इधर गई रे 40 दिन तक वही लिंक है, वही लिंक दबा के क्लास में आना। हर दिन अलग लिंक नहीं आती आपको। ठीक है सर। ओके, और किसी को बोलना है कुछ? कल का होमवर्क नहीं आया। वालेकुम अस्सलाम। कल का होमवर्क नहीं आया था। जब सुबह हम स्टार्ट करते हैं पता नहीं लगता है कहाँ पे हमें क्लिक करना है। ये देखिए, मैं हर दिन जो है क्लास शुरू होने से पहले जूम का लिंक डाल रहा हूँ। वो लिंक को खाली आप टच करें, हम ग्रुप में आ जाएंगे। वो लिंक को आप खाली उंगली से टच करें, मैं भेज रहा हूँ। क्लास शुरू होने से पहले लिंक भेज रहा हूँ। और एक बात तमाम लोगों को बोल रहा हूँ, मैं गौर से सुनिए। जो हमारे ग्रुप का हमारा जो ग्रुप है, वो ग्रुप में सबसे ऊपर नाम लिखा हुआ है Zoom 17 है। सबको नजर आता वो? हाँ, आप ग्रुप 17 को उंगली से टच करेंगे तो नीचे लिंक खुल जाती है डिस्क्रिप्शन में पूरी। आप उसको टच करें, आप क्लास में आते। आप उसको टच करें, क्लास में आते। सबसे ऊपर की लाइन जो लिखा हुआ है Zoom 17, आप उसको टच करिए। टच करते ही जूम की लिंक। बातचीत नहीं करें क्लास में, बातचीत नहीं करें घर वालों से। माइक बंद कर दें अपना। लेडीज की आवाज नहीं आना चाहिए क्लास में। घर वाले बात कर रहे हैं तो अपना माइक बंद रखें। तो क्या करें, आप Zoom 17 को टच करें और जैसे ही उसके नीचे लिंक आ जाएगा, आपको दिखेगा बारीक 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 सब कोड दिखेगा। उसको टच करें, आप क्लास में आ जाएंगे। अलग से भेजने की जरूरत नहीं, उसमें डाल दिया हूं मैं। ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूं। आप ग्रुप को टच करें, डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा। डिस्क्रिप्शन को टच करें, आप क्लास में आ जाएंगे। ठीक है, सबको मालूम हो गया? अब और क्या पूछना है किसी को? और कुछ होमवर्क नहीं आया मुझे। नहीं, होमवर्क नहीं था कल। हर दिन नहीं रहता होमवर्क। नहीं, होमवर्क नहीं था। जिस दिन रहेगा उसी दिन भेजूंगा। हर दिन नहीं रहता हूँ। जिस दिन नया सबक पढ़ा है उस दिन रहता हूँ। और पूछिए। वालेकुम सलाम। बोलिए। पीछ वाली जो एक्सरसाइज है साहब, उसमें पहले वाले हर नो नो हो, ये इसमें पहली वाली एक्सरसाइज में जो ऊपर थोड़ा एक निशानी लिख के है, क्या है साहब? हाँ, वो क्या है मालूम? ये क्या है आपको बताता हूँ मैं। वो नंबर 1 डाला हुआ है। ये रुसुलू के ऊपर जो लिखा हुआ है सो बोल रहे ना? जी। वो नंबर 1 डाल के नीचे उसके बारे में नीचे हिजे करके लिखा है। ऊपर यहाँ पे 1 डाला, बीच में तीसरी लाइन में नंबर 1 डाल के हिजे लिखा। नीचे करो साहब थोड़ा। ये पेश वाली इसमें भी है रुसुलू। ये पेश वाली दिख रही है। रुसुलू के बाद रुसुलू के नीचे नुकीसा है जी। उसके नीचे वो उसकी पूरी तफसील लिखा। उन्हें वहां 1 लिखा, यहाँ पे भी 1 लिख के उसके बारे में पूरी तफसील लिखा। वो निशानी डाला यहाँ नीचे, उसके बारे में तफसील है बोल के। जी समझ में आ गया? जी। ये देखिए, मैं आपको पूरी क्लास वालों को बताता हूँ एक बात, जरा गौर से देखिए आप ये बात। ये इंग्लिश का आप लोगों को मालूम है। इंग्लिश का ये एक पेज है, इसमें इंग्लिश में एक लेटर लिखा हुआ है। एक लेटर लिखा हुआ है या कोई भी डॉक्यूमेंट है, कोई चीज है, ये पूरा लिखा हुआ है। ये पूरा इंग्लिश में टाइप करा हुआ है जी। आप क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ आपको ऐड करना रहता। यहाँ पे कुछ ऐड करना रहा कहीं भी बीच में, तो आप क्या करते मालूम है? यहाँ पे एक ऐसा मार्क डालते, एक एक्स मार्क डाल के ऐसे निशाना डालते जी। ऐसा डाल के आप यहाँ पे मार्जिन में जो है, फिर वही सेम निशान डाल के यहाँ पे जो लिखना है उसके बारे में लिखते हैं यहाँ पे। यानी यहाँ पे यहाँ पे ऐड होना है। यहाँ पे ये जहाँ पे निशान डाले है ना, ऐसा निशान डालते। या कोई ऐसा डालता। ये लोग क्या करते हैं, अरबी में ऐसा लिख के
آواز نہیں آ رہی. آواز نہیں آ رہی ہے سر. آواز نہیں آ رہی نا. سر کے پاس انٹرنیٹ چلے گا ایسا ہے وہاں پہ اس لیے آواز نہیں آ رہی. کال کرو بولے سر. ہاں کرو نا کال کرو. اچھا یہ سبق اسی گروپ میں آتا ہے یا کوئی الگ سے گروپ ہے جس میں سبق لنک آتا ہے اس میں؟ سبق آپ لنک کو ٹچ کرے تو مولانا کا ٹائمنگ جو کلاس شروع ہوتی ہے اس ٹائم پہ کلاس چالو ہوتی. نہیں کلاس کی نہیں پوچھ رہا ہوں, پوچھ رہا ہوں جو جیسے سبق آتا ہے جس سے ابھی کل جو. جی جناب وہ کٹ گیا تھا, وہ لائن کٹ گئی تھی, میں دوبارہ آ گیا ہوں. وہ لائن کٹ گئی تھی, میں دوبارہ جوائن ہو گیا ہوں. ابھی دعا پڑھوں گا اور دعا پڑھوں گا پھر اس کے بعد ختم کر دیں گے کلاس آج. اور کسی کو کچھ پوچھنا تو نہیں تھا نا؟ کسی کو کچھ پوچھنا؟ جی کسی کو اور کچھ پوچھنا ہے؟ السلام سر, میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے, بولیے. سر اس میں 2 پوائنٹس ہیں سر. یعنی کہ پہلا پوائنٹ جو ہے سارے ڈسٹربنس ہو رہے جیسے کہ مائک آن کر رہے اور ویڈیوز آن کر رہے. آپ ایک جن سکھا رہے بورڈ پہ یہ کر رہے تو آپ کو دقت ہو رہی کہ بار بار ان کو سمجھاتے رہے. تو کسی کو ایک کو یا 2 کو اپنے جو بھی معتبر ہے جو جانکاری رکھتا ہے ان کو انشاءاللہ کو ہوسٹ بنا دے. انشاءاللہ. پوائنٹ نمبر 2 کیا؟ دوسری بات یہ جو ہے کہ یہ کہاں نیا بندہ ہوں ایک یہ ہے تو وہاں بھی یعنی کہ گروپ میں واٹس ایپ گروپ میں بھی کسی کو ایڈمن بنا دے تاکہ وہ 1-2 منٹ یا 5 منٹ یا 10 منٹ کے لیے ایک سیشن لے لے, کال لے لیں یا ایسے ہی لے لیں یا کچھ وائس بھیج دیں تو آسانی ہو جائے گی. ٹائمنگ میں کیونکہ آپ کا ٹائمنگ اور مغرب کا ٹائم ہے یہ ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ اس کو امپلیمنٹ کریں گے انشاءاللہ. آپ کا سجیشن از ویری گڈ. انشاءاللہ وی ول امپلیمنٹ اٹ انشاءاللہ. ایک بات کہنا چاہ رہے تھے. ہیلو جی جی انہوں نے جو سجیشن دیا ہے بہت, میں بھی یہی بولنا چاہ رہا تھا کہ بہت سے لوگوں کو جو ہے دقت ہو رہی ہے کلاس میں. جیسے آپ اسکرین شیئر کرتے ہو کوئی سی تو وہ کافی دیر تک آ نہیں پاتا کیونکہ کچھ لوگوں کے مائک آن ہوتے ہیں, کچھ کی ویڈیو آن ہوتی ہے. تو ایسا کریے یا تو واٹس ایپ پر ایک ٹیوٹوریل زوم کا کیسے ہم اسے یوز کر سکتے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس بہت سارے ممبر ایسے ہیں جو تھوڑے بزرگ حضرات ہیں جن کے پاس کوئی ہے نہیں بتانے کے لیے کہاں سے ویڈیو آف کر سکتے آپ ہیں. ایک ٹیوٹوریل بنا کے میرے کو دیجیے, میں گروپ میں پوسٹ جی کروں گا. جی حضرت بالکل میں دیتا ہوں. آپ ایک ٹیوٹوریل بنا کے میرے کو دیجیے, جی بہت میں لوگوں اس کو گروپ مدد میں ہو ڈال جائے دوں گی. گا تاکہ لوگ پڑھ کے سمجھ جائے. جی حضرت بالکل ویری گڈ سجیشن. آئی اپریشیٹ یور سروس. جی جزاک اللہ سر, جزاک. اوکے چلو دعا پڑھ لیتے ہیں. سب لوگ مائک آن کریں, دعا پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. پاک ہے تمہارا پروردگار جو بڑی ہی عزت والا ہے اور بری ہے ان تمام باتوں سے جو مشرک بیان کرتے ہیں. سلام ہو تمام رسولوں پر. تمام رسولوں پر. ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے.
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व अल्लाह साहब जज़ाकल्लाह, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाह।